Hello, dear student. Hope you are all fine and safe. Today we are starting topic civics. These are the syllabus. First topic is Unit 1 Equality to Indian Democracy. Chapter 1 on Equality. Unit 2 State Government. इसमें दो चैप्टर आपको कवर अप करने होंगे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, एंड चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. यूनिट 3 जेंडर. चैप्टर 4 ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड चैप्टर 5 वुमेन्स चेंजेस द वर्ल्ड. यूनिट 4 मीडिया. मीडिया में जो आपको कंटेंट कवर करना है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मीडिया. और यूनिट 5 मार्केट्स. चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस, एंड चैप्टर 8 a shirt in the market. And last but not the least, equality in Indian democracy. So we talk about unit 1 equality. Equality in Indian democracy के talk about equality in Indian democracy, ये आपकी unit 1 है. These are the content of unit 1. Topic is on equality. So we can say India is a democracy. In the class 6 books, we looked at the key elements of a democratic government. These includes people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter you will read more about equality, what is only it important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin. So we can say about equality, ये आपकी यूनिट 1 का टॉपिक है. इक्वलिटी का मतलब होता है समानता. तो हम कह सकते हैं कि भारत हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है. इसमें जो हमारा सिस्टम है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, इसमें जो सबसे बेसिक हमारा जो फीचर है डेमोक्रेसी का दैट इज़ इक्वलिटी. मतलब सभी व्यक्तियों में समानता होना. कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसके पास ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, हर एक व्यक्ति अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी आर इक्वल. So India is a democracy system, and equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. So in this chapter you will read about equality. What is equality, what is the meaning of equality, kinds of equality, equality in democracy. So first जो आपका की फीचर है, these are the pictures जिसमें आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं. इन पिक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स आपको शो हो रहे हैं. जैसे फर्स्ट कैरेक्टर्स में एक फार्मर, सेकंड में टीचर, देन बिजनेसमैन, स्टूडेंट, देन कारपेंटर और हाउस वाइफ. सो दीज आर द पिक्चर्स. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैरेक्टर्स हमें शो कर रहे हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें अलग अलग व्यक्ति अपना अपने अपने जो वर्क कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी सब, चाहे कोई भी किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर एक व्यक्ति यहाँ पर इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी. ये जो सेकंड पिक्चर में आप और भी जो पिक्चर्स देख रहे हैं उसमें ये कुछ दो लेडीज़ हैं जो कुछ गॉसिप कर रही हैं अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी. अब नाउ कम टू द पॉइंट. जो मेन कंटेंट इज़ इक्वल राइट टू वोट. इसमें एक स्टोरी दे रखी है, हमको स्टोरी बता रखी है हमको, जो स्टोरी मैं आपको रीड करूँगी एंड उसको डिफ़ाइन करूँगी. सो द स्टोरी इज़ story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognize her employees, Ashok Jain and Chote Lal, her neighbors in a democratic country like India. All adults all adults irrespective of what religions they belong to and how much education they have had, what caste
they are or whether they are rich or poor are allowed to vote. This, as you have already read in this class 6 book, is called Universal Adult Franchisee and is an essential aspects of all democracy. The idea of universal adult franchisee is based on the idea of equality because it states that every adults in a equal in country irrespective of their wealth and the community he belong to has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. सो ये जो स्टोरी है आपको कांता की, वो ये हमें बता रही, ये शो कर रही है कि कांता एक वोट देने की लाइन में खड़ी होती हैं और जब वो देखती हैं कि उस लाइन में बहुत सारे और भी व्यक्ति हैं, जैसे उसके जो मालिक हैं, जो उसके मैनेजर हैं, सारे व्यक्ति भी उसी लाइन में खड़े हैं। सो इससे ये चीज़ शो होती है कि वोट देने का अधिकार है, जो भारत जैसे एक डेमोक्रेसी सिस्टम में जो वोट देने का अधिकार है सभी व्यक्तियों को है जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं, 18 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो व्यक्ति, वो सारे लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं वो इसमें अपना वोट देने का अधिकार रखते हैं। सो ये जो वोटिंग सिस्टम है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का मेन पार्ट है और इसमें ये जो पिक्चर है वो ये शो कर रही है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो देश का अमीर हो, चाहे वो देश का गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, सभी व्यक्ति वोट एक साथ देते हैं और एक लाइन में खड़े होकर देते हैं। तो ये पिक्चर शो करती है अबाउट इक्वलिटी। नेक्स्ट पिक्चर और ये जो नेक्स्ट स्टोरी है जो हमको फाइंड आउट हो रही है इन दिस चैप्टर, सो वी कैन से बट एट हैज अ डे गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इज इक्वलिटी रियली मीन्स। अब कांता के मन में हमेशा एक बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके अराइज होता था कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी और ये इक्वलिटी क्या है। और जब अगर आप और आगे देखते हैं तो what is that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day home from work because she needs to borrow money from her employees to take her child to the doctor. Her job as a domestic help and tries her out, and finally she ends her day by again standing on a long time. This line in front of the government hospital and unlike the one is the morning because most of the people standing in a are poor. अबाउट कांता के मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि ये व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी, ये इक्वलिटी क्या होती है। और अगर वो चूँकि एक स्लम एरिया में, एक झोपड़पट्टी के एरिया में रहती थी और उसके घर के पीछे भी एक ड्रेनेज सिस्टम था और उसकी जो डॉटर थी वो भी बीमार रहती थी, बट वो डॉटर बीमार होने के बावजूद भी शी कैन नॉट टेक अ वन डे लीव, वो एक भी दिन की लीव नहीं ले सकती थी और बच्चे को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकती थी। और वो कोशिश करती थी कि जो भी है इतना टायर्ड हो जाती थी दिन भर काम करने के बाद कि उसको लगता था कि अगर मैं लीव लूँगी तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी। तो वो जब वो डॉक्टर को दिखाने जाती थी तो देखती थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिचुएशनों में वो मॉर्निंग से शाम तक एक लाइन में ही खड़ी रहती थी। तो उसको लगता था कि कुछ ऐसा स्पेशल फीचर होना चाहिए जिसमें वो डॉक्टर को आराम से दिखा सके। सो नेक्स्ट जो आपका जो कंटेंट आ रहा है वो दैट इज़ अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। तो जब उसने कांता ने ये रिकॉग्नाइज किया कि कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट whose daily living and working conditions are far from equal
apart from being poor. People in India experience inequality in different ways. Let's see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incident in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. ये जो दो स्टोरी आपने देखी, फर्स्ट स्टोरी कांता की, उसमें भी आपको इनइक्वालिटी शो हो रही थी, और फर्स्ट जो स्टोरी थी आपके बोटिंग लाइन की, उसमें भी आपको सबको इक्वालिटी शो हो रही थी. पलक देखना, ये ना बहुत बारीक आ रहा, पढ़ ही नहीं पा रही हूँ मैं तो इंग्लिश का, और अंधेरा भी पता है.